हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल एग्जाम एमसीक्यूज। यूनिट 3 का पार्ट 4 लेकर के मैं आ गई हूँ। हमने इसके पहले 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जिनमें हमने इंफॉर्मेशन सोर्सेज के रिलेटेड एमसीक्यूज किए थे। पार्ट 4 में हम इस यूनिट के बचे हुए एमसीक्यूज कंप्लीट करेंगे। हम इससे पहले 2 यूनिट्स कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं वो वीडियोस तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Question 1. Who was the first editor of Library Miscellany, a quarterly journal published from Baroda State? बड़ौदा राज्य से प्रकाशित लाइब्रेरी मिसलेनी एक त्रैमासिक पत्रिका के पहले संपादक कौन थे? जे.एस. कोडलकर, डब्ल्यू.ए. बॉर्डन, सी.जी. विश्वनाथन या यांकी वेंकट रमन्या? The correct answer is A. J.S. कोडलकर। महाराज सियाजीराव गायकवाड़ तृतीय of Baroda State launched publication of a quarterly journal called Library Miscellany in 1912 और ये 3 भाषाओं में उस टाइम आई थी, इंग्लिश, गुजराती और मराठी में। इसके फर्स्ट एडिटर थे जे.एस. कोडलकर। ये फर्स्ट लाइब्रेरी जर्नल थी जो इंडिया में पब्लिश हुई थी और ये 1919 में इसका प्रकाशन जो है वो बंद कर दिया गया। Question 2. Who wrote the book An Introduction to Library Classification? An Introduction to Library Classification पुस्तक किसने लिखी? J.D. Brown, S.R. रंगानाथन, W.C.B. Sayers या हॉवर्ड फिलिप्स? The correct answer is C. W.C.B. Sayers. An Introduction to Library Classification with reading, questions and examination papers was written by W.C.B. Sayers and first published in 1918. W.C.B. Sayers द्वारा ये लिखी गई थी और सबसे पहले कब प्रकाशित हुई थी? 1918 में। Question 3. Who is the author of the book Organization of Knowledge in Libraries? Organization of Knowledge in Libraries पुस्तक के लेखक कौन है? J. Mills, S.R. रंगानाथन, W.C.B. Sayers या H.E. Bliss? The correct answer is D. H.E. Bliss. Organization of Knowledge in Libraries and the Subject Approach to Books, written by H.E. Bliss and first published in 1933. बुक्स के नाम अगर हो सके तो आप ज्यादातर इंग्लिश में याद रखने की कोशिश कीजिएगा। Question 4. The reference book Introduction to Reference Work, first published in 1969, was written by whom? सन 1969 में पहली बार प्रकाशित संदर्भ पुस्तक इंट्रोडक्शन टू रेफरेंस वर्क किसके द्वारा लिखी गई थी? विलियम कार्ड्स, एस.आर. रंगानाथन, डेविस ग्रोगन या मार्गरेट हचिंस? द करेक्ट आंसर इज ए. विलियम कार्ड्स। Question 5. The book Introduction to Reference Work, published in 1944, was written by whom? 1944 में प्रकाशित पुस्तक इंट्रोडक्शन टू रेफरेंस वर्क किसके द्वारा लिखी गई थी? विलियम कार्ड्स, एस.आर. रंगानाथन, डेविस ग्रोगन, मार्गरेट हचिंस? द करेक्ट आंसर इज डी. मार्गरेट हचिंस। क्वेश्चन 6. व्हाट इज इंडेक्स इंडिया? इंडेक्स इंडिया क्या है? एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस, इंडेक्सिंग सर्विस, ट्रांसलेशन सर्विस या रेप्रोग्राफिक सर्विस? The correct answer is B. Indexing service. Question 7. Who is the publisher of Index Translatonium? Index Translatonium का प्रकाशक कौन है? UNO, FAO, UNESCO या UNIDO? The correct answer is C. UNESCO. The publisher of Index Translatonium is UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. It is an annual bibliography of translated books published by the UNESCO since 1948. तो ये कब से प्रकाशित हो रही है? 1948 से. It covers only translated books on all the subjects from various countries of the world. Question 8. Who publishes the World Index of Scientific Translations? विश्व वैज्ञानिक अनुवाद सूचकांक कौन प्रकाशित करता है? नेशनल ट्रांसलेशन सेंटर, यूरोपियन ट्रांसलेशन सेंटर, ब्रिटिश लाइब्रेरी लैंडिंग डिवीजन या लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस? द करेक्ट आंसर इज बी. यूरोपियन ट्रांसलेशन सेंटर. द वर्ल्ड
Index of Scientific Translation is published by the European Translation Center, now known as the International Translation Center, based in Delft, Netherlands. Essentially, the organization responsible for compiling the index in the ITC. ये किसमें जाना जाता है? मूलतः सूचकांक को संकलित करने के लिए जिम्मेदार संगठन ITC है। Question 9. How many parts are there in 13-digit ISBN number? 13 अंकों वाली ISBN संख्या में कितने भाग होते हैं? 7, 4, 5 या 2? The correct answer is C, 5. Each part of an ISBN represents different information like first part क्या होता है? Prefix. Second होता है registration group. Third होता है publisher. Fourth is publication details and the last one digit जो होता है वो होता है check digit. Question 10. Which national agency in India is assigning the ISBN? भारत में कौन सी राष्ट्रीय एजेंसी ISBN आवंटित कर रही है? राजा राममोहन रॉय नेशनल एजुकेशन रिसोर्स सेंटर, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, फेडरेशन ऑफ पब्लिशर्स इन इंडिया या नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया? द करेक्ट आंसर इज ए, राजा राममोहन रॉय नेशनल एजुकेशन रिसोर्स सेंटर। आपका ये बताना है, आपका ये क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कि ये जो एजेंसी है राजा राममोहन रॉय नेशनल एजुकेशन रिसोर्स सेंटर, ये इंडिया में कहां पर है जहां से ये ISBN प्रोवाइड करवाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11. इंटरनेशनल स्टैंडर्ड नेम आइडेंटिफायर कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी डिजिट्स? अंतरराष्ट्रीय मानक नाम पहचानकर्ता इनमें कितने अंक होते हैं? 10 डिजिट्स, 12 डिजिट्स, 13 डिजिट्स या 16 डिजिट्स? द करेक्ट आंसर इज डी, 16 डिजिट्स। ISBN में कितने होते हैं? 13। ISNI में होते हैं 16 डिजिट्स। The International Standard Name Identifier is an identifier system for uniquely identifying the public identities of contributors to media content such as books, television programs, and newspaper articles. Such an identifier consists of 16 digits. It can optionally be displayed as divided into 4 blocks. अंतरराष्ट्रीय मानक नाम पहचानकर्ता यानी कि ISNI एक पहचानकर्ता प्रणाली है जो पुस्तकों, टेलीविजन कार्यक्रमों और समाचार पत्रों के लेखों जैसे मीडिया सामग्री में योगदानकर्ताओं की सार्वजनिक पहचान को विशिष्ट रूप से पहचानने के लिए है। इस तरह के पहचानकर्ता में 16 अंक होते हैं। इसे वैकल्पिक रूप से 4 ब्लॉक्स में विभाजित करके प्रदर्शित किया जा सकता है। Question 12. Which national agency in India is assigning the ISSN? भारत में कौन सी राष्ट्रीय एजेंसी ISSN आवंटित कर रही है? BIS, RRRLF, NISCARE या नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता? The correct answer is C, NISCARE. In India, the National Science Library, which is part of CSIR, NISCPR, formerly NISCARE, पहले जिसका नाम NISCARE था, after 2021 इसका नाम NISCPR हो चुका है, is the national agency responsible for assigning ISSN numbers to serials published within the country, essentially acting as the ISSN National Center for India. Question 13. The phrase electronic book was first conceived by इलेक्ट्रॉनिक पुस्तक शब्द की कल्पना सर्वप्रथम किसने की थी? हेलेन एल ब्रॉनसन, एंड्रीस वॉन डैम, रॉबर्ट ली चार्टेड या थॉमस एफ डेहल? द करेक्ट आंसर इज बी, एंड्रीज वैन डैम. Andries van Dam of Brown University is generally credited with coining the term electronic book in the 1960s. The term was established enough to be used in an article titled by 1985. ब्राउन यूनिवर्सिटी में एंड्रीज वैन डैम को आमतौर पर 1960 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक बुक शब्द गढ़ने का श्रेय दिया जाता था। यह शब्द 1985 तक इतना प्रचलित हो चुका था कि इसे एक लेख के शीर्षक में भी इस्तेमाल किया जाने लगा। Question 14. Which among the following is free audio book site? निम्नलिखित में से कौन सी निःशुल्क ऑडियो बुक साइट है? eBrary, वर्चुआ, गूगल बुक्स या लिब्री बॉक्स?
The correct answer is D. LibriVox. LibriVox was started in August 2005 by Hugh McGill. Question 15. Which one of the following is a bulletin board service on the internet? निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट पर बुलेटिन बोर्ड सेवा है? पिकासो, गूगल टॉक, ब्लॉग या ओवो? द करेक्ट आंसर इज सी, ब्लॉग. Question 16. Directory of Open Access Journal was first launched in. Open Access Journals की निर्देशिका पहली बार कब शुरू की गई थी? 2001, 2003, 2005 या 2006? The correct answer is B. 2003. The Directory of Open Access Journal was initiated at Lund University, Sweden, and started with around 300 open access journals titles. Question 17. Wikipedia was first launched in which year? विकिपीडिया पहली बार किस वर्ष लॉन्च किया गया था? 2000, 2001, 2002 या 2003? The correct answer is B. 2001. विकिपीडिया जिमी वेल्स और लैरी सेंगर द्वारा निर्मित विकिपीडिया एक बहुभाषी ऑनलाइन विश्वकोश है, यह आप सभी जानते हैं, जिसमें विशेष रूप से निःशुल्क सामग्री यानी कि फ्री कंटेंट जो है प्रोवाइड किया जाता है, जो वेब ब्राउज़र जैसे वेब आधारित अनुप्रयोगों द्वारा संपादित सामग्री के मॉडल के माध्यम से खुले सहयोग पर आधारित है, जिसे विकी कहा जाता है. ठीक है, दिस इज अ ओपन कोलैबोरेशन थ्रू अ मॉडल ऑफ कंटेंट एडिटेड बाय वेब बेस्ड एप्लीकेशंस लाइक वेब ब्राउजर्स कॉल्ड विकी. इसे पहली बार 15 जनवरी 2001 को लॉन्च किया गया था और प्रेजेंट में इसका स्वामित्व विकीमीडिया फाउंडेशन के पास है, जो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है. क्वेश्चन 18. व्हाट इज एंट्रेंस? एंट्रेंस क्या है? वेब पोर्टल फॉर इंजीनियरिंग, वेब पोर्टल फॉर हेल्थ, सब्जेक्ट गेटवे फॉर सोशल साइंसेज या सब्जेक्ट गेटवे फॉर ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज? The correct answer is B. It is a web portal for health. Question 19. Which of the following is an Indian news, information and shopping web portal? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय समाचार सूचना और शॉपिंग वेब पोर्टल है? Yandex, Rediff, Never या Seppo? The correct answer is B. Rediff. Question 20. Microsoft Academic was launched in which year? Microsoft Academic किस वर्ष लॉन्च किया गया था? 2015, 2016, 2018 या 2019? The correct answer is B. 2016. Like Google Scholar and Scopus, Microsoft Academic is a free public web search engine for academic publications and literature developed by Microsoft Research, relaunched in 2016. It is a bibliographic database which was ended development in 2012 and again relaunched in 2016. Question 21. Research in Progress database in India is. भारत में अनुसंधान प्रगति डाटाबेस क्या कहलाता है? विद्यानिधि, शोध गंगा, शोध गंगोत्री या इंडियन नेशनल डिपॉजिटरी लाइब्रेरी? द करेक्ट आंसर इज सी, शोध गंगोत्री. शोध गंगोत्री is a digital repository of research synopsis developed by InfLibNet. Question 22. Science Direct database is developed by. Science Direct database किसके द्वारा विकसित किया गया था? Emerald, EBSCO, Sage Publications या Elsevier? The correct answer is D. Elsevier. Science Direct is a website which provides subscription-based access to a large database of scientific and medical research. It was developed by Elsevier and first launched in March 1997. साइंस डायरेक्ट एक वेबसाइट है जो वैज्ञानिक और चिकित्सा अनुसंधान के एक बड़े डेटाबेस तक सदस्यता आधारित पहुंच प्रदान करती है. इसे एल्सेवियर द्वारा विकसित किया गया था और पहली बार मार्च 1957 में लॉन्च किया गया था. क्वेश्चन 23. वर्ल्डकैट इज मेंटेन्ड बाय. वर्ल्डकैट का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है?
लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, OCLC, ALA या इनफ्लिबनेट? द करेक्ट आंसर इज बी, OCLC। वर्ल्ड कैट जो है एक ऑपरेटेड बाय OCLC INC। Many of the OCLC member libraries collectively maintained WorldCat's database, the world's largest bibliographic database। WorldCat जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा बिब्लियोग्राफिक डाटाबेस है, जिसे कई सदस्य पुस्तकालय समूह रूप से WorldCat के डाटाबेस का रखरखाव करते हैं। Question 24. The database Indian Patents is published by? डेटाबेस इंडियन पेटेंट्स किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? निस्केयर, नेस्डॉक, निस्टेड्स या डेसीडॉक? द करेक्ट आंसर इज ए, निस्केयर। सम ऑफ द इंडिजिनस database developed by Niscare are available on CD-ROM as well as online। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये याद रखनी चाहिए कि निस्केयर के द्वारा जो भी विकसित हुए हैं कुछ स्वदेशी डाटाबेस, वो CD-ROM के साथ साथ ऑनलाइन में अवेलेबल है, जिनका नाम है नेशनल यूनियन कैटलॉग ऑफ साइंटिफिक सीरियल्स इन इंडिया, इंडियन पेटेंट्स, मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट्स एब्स्ट्रैक्ट्स और इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट्स। Question 25. Emerald full text database is published from? एमराल्ड पूर्ण पाठ डाटाबेस कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? USA, जर्मनी, फ्रांस या UK? द करेक्ट आंसर इज डी, UK। Emerald Publishing Limited is a scholarly publisher of academic journals and books in the field of management, business, education, library studies, healthcare, and engineering. It was founded in the United Kingdom in 1967 and has its headquarters in Bingley. Emerald Publishing Limited प्रबंधन व्यवसाय शिक्षा, पुस्तकालय अध्ययन, स्वास्थ्य सेवा और इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में एकेडमिक पत्रिकाओं और पुस्तकों का एक विद्वान प्रकाशक है। इसकी स्थापना 1967 में यूनाइटेड किंगडम में हुई थी और इसका मुख्यालय बिंगले में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप अभी किस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही और इम्पोर्टेंट हम वीडियोस आपके लिए बनाते रहेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। और कोई सजेशंस हो तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। मैं पूरी कोशिश कर दूंगी कि वीडियोस जल्दी से जल्दी लाने की ट्राई करूं। थैंक यू।